اضافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں تیزی آ چکی ہے۔ بیسمنٹ کی تکمیل کے بعد فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز کر دیا گیا۔ اسٹیڈیم کے انکلوژرز پر دن رات تعمیراتی کام جاری ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا الصبح قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے انکلوژرز کی اپ گریڈیشن کے کام کا معائنہ کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے فلورز اور سٹیل فکسنگ ورک پر پیش رفت کا مشاہدہ بھی کیا اور چیئرمین پی سی بی نے پروجیکٹ پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ مزید اس دورے کا احوال جانتے ہیں وسیم احمد سے۔ جی وسیم۔ اپ گریڈیشن کے کام کے حوالے سے خاصے پرجوش نظر آتے ہیں۔ انہوں نے آج بھی دورہ کیا تھا قذافی اسٹیڈیم کا، جس میں انہوں نے تمام ترقیاتی کام جو ہے اس کا جائزہ لیا تھا۔ پہلا جو فیز ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں بیسمنٹ بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو فلورز ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہاسپٹلٹی باکس بنائے جائیں گے، ان کا بھی اس کام کا جو جائزہ تھا وہ بھی آج چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بر وقت مکمل کیا جائے گا۔ کام کی بہتر معیار کو ہر صورت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یقینی بنایا جائے گا کہ کام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہ چھوڑی جائے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہدایت کی کہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل قذافی اسٹیڈیم کا اپ گریڈیشن جو پروجیکٹ ہے اس کو تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کیا جائے گا، تاکہ اچھے انداز میں جو چیمپئنز ٹرافی 2025 ہے اس کا انعقاد جو ہے وہ پاکستان میں ممکن ہو سکے۔ اس کا آپ کو بتاتے چلوں کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم احمد، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس آج دبئی میں ہوگا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی دبئی روانہ۔ محسن نقوی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس آج دبئی میں ہوگا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی دبئی روانہ ہو چکے ہیں۔ محسن نقوی آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں اور اسی حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس آج دبئی میں ہونے والا ہے اور آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی دبئی روانہ ہو گئے۔ محسن نقوی آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں آج شرکت کریں گے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اسموگ کی بگڑتی صورتحال کی۔ ہر طرف دھواں ہے، گرد و غبار، زہریلی گیسز۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ شہر کی فضا انتہائی مضر صحت قرار، سانس لینے میں بھی دشواری ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 240 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ یو ایس کاؤنسلیٹ میں 249، جوہر ٹاؤن میں AQI 247 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ 245، فیز ڈی ایچ اے کی بات کی جائے تو 232 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے بھی کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ موسم کیسا ہے اور اسموگ کی صورتحال کیسی ہے، ہمیں کومل اسلم مزید اپڈیٹ کریں گی۔ جی کومل۔ لاہور شہر میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح دنیا بھر میں 240 ریکارڈ کی گئی ہے اور لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وہیں ہم لاہور کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو AQI کی مجموعی شرح یو ایس کاؤنسلیٹ میں 249 ہے، جوہر ٹاؤن میں 247 ہے، ٹھوکر نیاز بیگ میں 245 ہے اور فیز 8 DHA میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ 232 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور کے باشندوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید ماہرین کی جانب سے جاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ بنا ماسک گھروں سے نکلنے سے گریز کریں، کیونکہ لاہور کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور مضر صحت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی احتیاط کو یقینی بنانا ہے۔ وہیں جو ہے وہ بیجا ٹریفک کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہے وہ بھی لاہور کی فضا کو متاثر کرنے میں بہت بڑا کردار نبھا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بارش سے متعلق کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، لہٰذا لاہوری جو ہیں وہ بے جا جو ہے وہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ مزید سنگین ہو سکتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ لاہوریوں کو اپنی احتیاط کو یقینی بنانا ہے، ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ گلاسز کا بھی استعمال کریں، کیونکہ بڑھتی ہوئی فوگ اور بڑھتی ہوئی جو اسموگ ہے خاص طور پہ وہ لاہوریوں کی آنکھوں میں چبھن کا سبب بنے گی، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو لاہوریے جو ہیں وہ اپنی احتیاط کو یقینی بنائیں۔ بار بار اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ باغوں کی شہر کی رونق جو ہے وہ لاہوریوں سے ہے، شہریوں سے ہے اور شہری جو ہے وہ جب تک اپنے ارد گرد ماحول کو بہتر نہیں کریں گے، لاہور کی فضا بھی خراب ہوگی، لاہوریوں کی صحت بھی خراب ہوگی۔ ٹھیک ہے کومل، بہت شکریہ۔ ابھی آگے بڑھیں گے۔ حکومت کا اتھارٹیز ایجنسیز کی نئی اصلاحات کے بعد واسع خود مختاری کا پلان تیار۔
वासा बतौर एजेंसी LDA के मातहत काम नहीं करेगा। वासा लाहौर समेत पंजाब के तमाम वासा PSWA के मातहत होंगे। हमारे साथ दुर्र नायाब हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज़ के और इसके अलावा जो बाकी पंजाब की दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनमें इस्लाहात लाने के बाद अब जो मैकेनिज़्म सामने आ रहा है उस पर वासा लाहौर समेत पंजाब के तमाम वासा जो हैं वो खुद मुख्तार हो जाएंगे और वो अपनी कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी से बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह वासा लाहौर की बात की जाए तो वासा LDA के मातहत नहीं रहेगा, बल्कि जो पंजाब लेवल पे पंजाब सैनिटेशन एंड वाटर अथॉरिटी बनाई जा रही है उसके मातहत हो जाएगा, लेकिन सिर्फ रेगुलेशंस की हद में। और जो ऑपरेटिंग मैटर्स होंगे या कानून साजी या दीगर फैसलों के हद तक मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया जाएगा। इस तमाम इस्लाहात की जल्द से जल्द नफाज के लिए अब फाइनल बातें की जा रही हैं। एक्ट की मंजूरी के बाद नीचे क्या क्या चीज़ें किन किन तरामीम के तहत होंगी वो महकमों की डिफ़ाइन हो रही हैं और इसमें जो कानून साजी के मामलात से लेकर अब तक जो जो लोग इन्वॉल्व थे वही अब इसकी बाकायदा डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। पावर ऑफ डेलिब्रेशंस और एक्टमेंट में जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होंगी वो किया जा रहा है, जिसके बाद वासा लाहौर LDA से निकल जाएगा, LDA गवर्निंग बॉडी से भी निकल जाएगा और अपना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत फैसले कर सकेगा। जी दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आए जुर्माने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5% सरचार्ज लगाया जाएगा। मुकर्ररा तारीख में 3 दिन से ज़्यादा रोज़ गुजरने पर 10% सरचार्ज आयद कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुर्माने पॉलिसी के हवाले से शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर आयद सरचार्जेस की पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है। नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ज़रा बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेपरा के नोटिफिकेशन पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद भी शुरू किया गया है। जो पॉलिसी नेपरा की जानिब से तरतीब दी गई है उसके मुताबिक कहा गया है कि वो बिजली के बिल जो कि मुकर्ररा तारीख में जमा नहीं होते उन पर 5 से 10% तक जो इजाफी सरचार्ज हैं वो आयद किए जाएंगे। लेकिन अब उसमें कुछ पॉलिसी को तब्दील किया गया है कि 5% की भी स्लैब मुतारिफ करवाई गई है और उसमें जो रखी गई पॉलिसी उसके मुताबिक वो सार्फिन जिनको जो मुकर्ररा तारीख दी गई है और उसमें अगर अख्तियारात के मुताबिक मुतलका सब डिवीजन या सर्कल या हेड क्वार्टर्स की सतह पर उसमें तोसी दी जाती है तो उस पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन तोसी के बाद अगर वो बिल सबमिट नहीं होता और 3 दिन तक उसमें 3 दिन के दौरान अगर सारिफ अपना बिल जमा करवाता है तो उस पर 5% तक ये इजाफी सरचार्ज आयद किया जाएगा। सरचार्ज की बुनियाद पर जो उनको बिल दिए जाएंगे वही सार्फिन मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा सकेंगे। इससे बेनिफिट सार्फिन को ये मिलेगा कि पहले सिर्फ बराह रास्त 10% ये सरचार्ज आयद किया जाता था, लेकिन अब स्लैब मुतारिफ होने के बाद वो सार्फिन जो कि मुकर्ररा तारीख के 3 दिन के अंदर अपना बिल सबमिट करवाते हैं उनको 10 की बजाय 5% तक ये सरचार्ज पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट का दौरा। सूबाई वज़ीर ने स्कूलों में तालीमी इंतजामात का जायज़ा लिया। राना सिकंदर हयात ने प्राइमरी और मिडिल के बच्चों से सबक सुना। उन्होंने कहा कि तालीमी काबिलियत के लिए साजा की ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है। स्कूल सरबराहान को टाइम टेबल पर खसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत जारी की। मज़ीद इस दौरे का अहवाल जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। तालीम राना सिकंदर हयात ने आज सुबह सवेरे जो है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल लाहौर कैंट का दौरा किया, वहाँ पर इंतजाम का जायजा लिया, बच्चों से सबक सुना और उन्होंने कहा कि इंतहाई ज़रूरी है कि असातिज़ा को जो है वो ट्रेनिंग फराहम की जाए और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जाएगी और इसके लिए टेस्ट भी रख दिया गया और जो टेस्ट पास करेंगे उनको बैरून मुल्क जो है ट्रेनिंग पर भिजवाया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने स्कूल सरबराहान को कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर खसूसी तवज्जो दें, टाइम टेबल बनाएं और मॉनिटरिंग के हवाले से उनका कहना था कि अब मैं खुद स्कूलों में जाऊँगा और स्कूलों का विजिट करूँगा और मॉनिटरिंग के साथ साथ जो है तालीमी मेयार का भी जायजा जो है वो लूँगा। बहुत शुक्रिया जुनेद। ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी का अहम इक़दाम। लाहौर की 3 बड़ी पार्किंग साइट्स को हाइब्रिड मॉडल के जरिए कैशलेस करने का फैसला। 3 पार्किंग साइट्स पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ करवाया जाएगा। CEO की जानिब से ऐसा बताया गया है। पहले मरहले में दाता दरबार बेसमेंट लिबर्टी मार्केट में हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ कराया जाएगा। मॉडल में जी टैग, QR कोड और डिजिटल टिकट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। जी बसाम।
जी बिल्कुल, शहर में पार्किंग की मद में ओवर चार्जिंग का खात्मा करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से अहम इकदाम जो है वो सामने आया है। लाहौर की 3 बड़ी पार्किंग साइट्स के ऊपर जो है वो हाइब्रिड मॉडल मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया गया है। ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये डिजिटलाइजेशन होगी, जिसके ज़रिए आने वाले अफराद जो हैं वो डिजिटल तरीके से इसकी अदायगी जो है वो कर सकेंगे। अगर हम देखें तो 3 जो बड़ी पार्किंग्स हैं, इनमें लिबर्टी पार्किंग, इसके साथ साथ दाता दरबार बेसमेंट और जो डुंगी ग्राउंड गुलबर्ग है प्लाजा, उसकी पार्किंग को जो है वो डिजिटलाइज हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो लेके जाने का फ़ैसला किया गया। बतौर पायलट प्रोजेक्ट 3 पार्किंग को जो है वो इस पर डिजिटलाइज किया जाएगा, जबकि मरहलावार दीगर पार्किंग्स को भी जो है वो इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए मुतारिफ करवा दिया जाएगा। अगर हम इसके अंदर देखें तो इस हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए जो है वो जी टैग जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा। वो गाड़ियाँ जो रोज़ाना इन पार्किंग्स में आती हैं उनके ऊपर जी टैग लगाया जाएगा और इस जी टैग के ज़रिए ऑनलाइन अदायगी की जा सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इसको दीगर ऐसे पॉइंट जहां पर सिंगल एंट्री सिंगल एग्ज़िट है वहां पर भी इस सिस्टम को मुतारिफ करवाया जाएगा, ताकि पार्किंग की मद में ओवर चार्जिंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके और लोग आके ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो है वो इसकी यकीनी बना सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब धी रानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादियों के लिए पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, धी रानी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं और पंजाब धी रानी प्रोग्राम के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर हेल्पलाइन 1312 भी कायम है। धी रानी प्रोग्राम में शफाफियत के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को खसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेगी। अलावा वज़ीर आला की जानिब से इज्तिमाई शादियों में नए जोड़ों को 1 लाख सलामी दी जाएगी और हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। ज़रूरी फर्नीचर, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा भी पेश किया जाएगा। अभी आपको बताएं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से गोशवारे जमा कराने के लिए डेडलाइन देने का फैसला। तमाम रजिस्टर्ड अफराद और विद होल्डिंग एजेंट्स को अपने गोशवारे जमा कराने के लिए मजीद वक्त फराहम कर दिया गया। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स और रजिस्टर अफराद को अपने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करवाने के हवाले से मजीद मोहलत दे दी गई है। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हदायत के पेश नज़र तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स और जितने भी तमाम रजिस्टर अफराद हैं उन्हें 25 अक्टूबर तक अपने जो गोशवारे हैं वो जमा करवाने के लिए मोहलत दी गई है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के सेक्शन 84 के तहत ये सहूलत फराहम की गई है। जबकि तमाम जो रजिस्टर अफराद और इसके अलावा जो विद होल्डिंग एजेंट से उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई थी और जो दरख्वास्त है वो भी की गई, जिसके पेश नज़र चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम को अपनी गोशवारे जमा करवाने के हवाले से 25 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि जो तमाम रजिस्टर अफराद हैं वो अपने सेल्स टैक्स रिटर्न के इसके अलावा जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट हैं वो 25 अक्टूबर से पहले जमा करवा सकते हैं। और जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है उससे कबल अगर सेल्स टैक्स जो रिटर्न जमा है वो नहीं होगी तो इसके अलावा जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जा सकती है। जबकि जो तारीख में तोसी की गई है इस हवाले से बाकायदा तौर पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी शुक्रिया कलीम आपका। 4453 स्कूलों को ठेके पर देने के लिए दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन ने इदारों को ठेके पर देने के लिए TOR जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, यंग ग्रुप, इनफरादी, पैफ पार्टनर्स और प्राइवेट स्कूल्स का अलग कोटा मुख्तस है, जबकि कोटे में NGOs, एच-टेक फर्म और इसके अलावा स्कूल चेन्स को शामिल कर लिया गया है। दूसरे फेज़ में 4453 स्कूल्स को ठेके पर दिया जाएगा। पहले फेज़ में 5863 स्कूल्स ठेके पर दिए जा चुके हैं। तीसरे फेज़ की बात की जाए तो 2900 से ज़ायद स्कूल्स ठेके पर दिए जा चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जी जुनेद। सरकारी स्कूलों को दूसरे फेज़ में प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से जो है TORs जारी कर दिए गए हैं और इसमें यंग ग्रुप के साथ साथ इनफरादी, NGOs और एच-टेक के अलावा जो है मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स चेन्स भी जो हैं दरख्वास्त जमा करा सकेंगी। इस हवाले से जो इनफरादी तौर पर दरख्वास्त जमा कराएगा उसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। जबकि अगर कोई NGO या यंग टेक फर्म जमा करवाती है दरख्वास्त तो उसके लिए 1 लाख रुपये फ़ीस रखी गई है जो कि नाकाबिले वापसी होगी। इस हवाले से TORs जारी कर दिए गए हैं
और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी इजाज़त होगी कि वो स्कूल लेने के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकें। इस हवाले से पेफ पार्टनर स्कूलों को भी कहा गया कि वो भी स्कूल लेने के लिए दरख्वास्त जमा कराएं। इसके लिए 4453 स्कूल जो हैं वो दूसरे फेज़ में ठेके पे दिए जाएंगे और इससे कबल जो है 5863 स्कूल प्राइवेटाइज किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे फेज़ में 2903 स्कूल जो हैं वो ठेके पर दिए जाएंगे और इस हवाले से भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।